آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کراچی بلاول ہاؤس میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ہر الیکشن جو ہوتا ہے چاہے وہ آپ کا لوکل باڈی یا جنرل الیکشن پروونشل نیشنل کا الیکشن ہو یا ہمارا یہ سینیٹرز کے جو الیکشنز ہے وہ بھی اس میں ہم میرا ووٹ میرا سیکرٹ بیلٹ پہ حملہ کیا جا رہا ہے, آپ کے ایم پی ایز کے جو سیکرٹ بیلٹ کا رائٹ ہے اس پہ حملہ کیا جا رہا ہے. پاکستان میں جو سارے جماعتیں ہیں چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, دوسری جماعتیں بھی, ہم سینٹ الیکشنز میں الیکٹورل ریفارمز کمپریہنسو الیکٹورل ریفارمز کے حامی ہیں. لیکن یہ حکومت اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. وہ صاف و شفاف الیکشنز غیر متنازع الیکشنز نہیں چاہتے ہیں. اگر وہ واقعی چاہتے ہیں تھے تو بہت ہی ٹائم تھا, تو 3 سال سے حکومت میں ہیں, بہت ہی ٹائم تھا کہ وہ کمپریہنسو الیکٹورل ریفارمز اور اس کے ساتھ ساتھ جو قانون سازی کو ضرورت ہوتا, جو آئین میں ترمیم کا ضرورت ہوتا, اس پہ وہ بات اور کام بھی کر سکتے تھے. مگر ان کا نیت خراب تھا. پہلے وہ امید رکھ رہے تھے کہ ان کو سینٹ میں بالکل ایک فری ہینڈ دیا جائے گا, ان کا مقابلہ ہی نہیں کیا جائے گا. جب ان کو پتہ چلا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سینٹ میں ان کا واقعی مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ اپنے ایم پی اے ایم این ایز ان سے ناراض ہے, ان سے سخت ناراض ہے, اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز پہ ایک نو کانفیڈنس شو کرتے ہوئے پہلے انہوں نے عدالتی ریفرنس فائل کیا, پھر انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا بل کمیٹی کے تھرو فورس کیا, کوئی ڈبیٹ کے بغیر, کوئی بات چیت کے بغیر, کوئی اپوزیشن کی ان پٹ کے بغیر. تو اگر آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا بل پیش کر رہے ہو, اگر آپ کا وفاقی وزیر نیشنل اسمبلی کے فلور پر کہہ رہے ہیں کہ کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, مطلب آپ بھی مان چکے ہو کہ یہ ایک آئینی ایشو ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے, اور اس کو اس میں تبدیلی لانے کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا پڑے گا. مگر اس کے بعد جب آپ ایک آرڈیننس نکالتے ہو, جو ایک آرڈیننس کے تھرو تو آپ کانسٹیٹیوشن چینج نہیں کر سکتے ہو, آپ پھر کہہ رہے ہو کہ یہ ایک لیجسلیٹو چینج کی ضرورت ہوگا, تو یہ کھلم کھلا ایک کانٹرڈکشن بھی ہے, ان کا اپنا پوزیشن میں ایک کنفیوژن اور ایک کانٹرڈکشن ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ نہ ہمارا عدالت اس کو اجازت دیں گے, جہاں الیکشن کمیشن نے بھی صاف کہا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل الیکشنز ہے, جہاں تاریخ ہمارے سامنے ہے, جہاں کورٹس کے پریسیڈنٹس موجود ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی obviously ریفرنس تو چل رہا ہے کورٹ میں, مگر ہم اس آرڈیننس کو بھی چیلنج کریں گے, اس آرڈیننس کو بھی چیلنج کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی آئین اور قانون کے تحت الیکشنز ہوں گے. اگر خدا نہ خواستہ یہ سازش کامیاب ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی بڑا حملہ ہوگا پاکستان کی جمہوریت پہ, پاکستان کی پارلیمان پہ اور پاکستان کے انتخابات پہ. اگر یہ سازش کامیاب ہوتا ہے تو you might as well lock the provincial assemblies and the national assemblies of Pakistan. ان کا فائدہ ہی کیا ہے, ممبرز کو ووٹ ڈالنے کا فائدہ کیا ہے, ان کا کوئی رائے کا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنا مرضی سے جو وہ کام کرنا چاہے, چاہے وہ لیجسلیشن ہو, چاہے وہ آئین میں ترمیم ہو, چاہے وہ ووٹ ہو, وہ ان کا حق ہے کہ ہم اپنا جو فورم ہے اس کے تھرو وہ کام کرے. اگر پریزیڈنٹس کے دفتر سے یا کورٹ کے تھرو لیجسلیشن ہونا ہے تو پھر آپ نیشنل اسمبلی کو اور پروونشل اسمبلی کو بند کرے, ان کے کوئی رول ہی نہیں رہا جمہوریت میں اور اس ریاست کے چلانے میں.
साथ साथ आप ये प्रेसिडेंट को देखें. इट्स नॉट अबाउट जस्ट वेयर डू यू स्टैंड ऑन ओपन बैलेट एंड क्लोज बाय. ये प्रेसिडेंट देखें. अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाता है तो हर इलेक्शन से पहले नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गया, कोई नेशनल असेंबली नहीं है, तो फिर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकालेगा कि ये इलेक्शन जो है ये भी ओपन जनरल इलेक्शन का वोटिंग होगा. फेसबुक पोलिंग के मुताबिक आप अपना फेसबुक पेज पे जाके वोट डालेंगे, देखेंगे कि हम कोई कानून साजी नहीं कर सकते इस्लाम हाउस में नहीं. ये बहुत ही खतरनाक प्रेसिडेंट है और मैं समझता हूं कि हुकूमत का ये स्टेप बहुत गैर जिम्मेदाराना स्टेप है. और मैं उम्मीद रखता हूं कि सारे जो हुकूमत के सहूलतकार है वो उनको भी ये समझ आना चाहिए कि इस किस्म का प्रेसिडेंट सेट करके जो खतरनाक राह पे हम चल रहे हैं वो बिल्कुल एक गलत मैसेज और गलत पैगाम मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर जाएगा. अब काफ़ी उम्मीदों हमारा सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता है कि वो गैर जानिबदारान और गैर सियासी आइन और कानून के मुताबिक जो फैसले हैं दिए जाएंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला इसका कोई चांस नहीं है कि ये ऑर्डिनेंस इलेक्शन तक रहेगा. जहाँ तक सेनेट इलेक्शंस की बात है, हमने ऑब्वियसली फैसला किया था कि हम इनके मुकाबला करेंगे. मैं आप सब के सामने कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान पार्लिमान सूबाई असम्बली और मेंबरान नेशनल असम्बली, हमारे लिए सीक्रेट बैलेट तो सबके लिए अपना ज़मीर के मुताबिक वोट डालना ज़्यादा आसान है. बहुत ही इस किस्म का निज़ाम में जहां नैब ना सिर्फ अपोजिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है सियासी सतह पे, मगर हुकूमत के तरफ से अपने इत्तेहादियों पे और अपने अपने मेंबरान के खिलाफ ब्लैकमेल करने के लिए भी इत्तेमाद होता है. तो ऑब्वियसली द हुकूमत एंड एवरीबडी हु इज़ कंसर्न्ड कि उनका अपने मेंबर्स के नेशनल असेंबली मेंबर्स पे, प्रोविंशियल असेंबली मेंबर्स पे दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस. दे आर अंडर दिस फॉल्स इंप्रेशन कि अगर हम ओपन बैलेट से इलेक्शन करवाएंगे तो शायद वो अपने मेंबर्स, अपने सेनेटर्स मुंतखब करने के लिए ज़्यादा आसानी होगा. मैं उनको बताना चाहूँगा कि आपके मेंबरान आपके खिलाफ ओपन वोट देने को तैयार है. हम इंशाअल्लाह ताला ओपन वोट में सही ज्यादा मुश्किल होगा, मगर आपको ओपन वोट में भी मुकाबला करने को तैयार है. और इंशाअल्लाह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपको ओपन वोट में भी टफ टाइम देंगे. लेकिन अगर आपके लिए ये एक्सेप्शन दिया जाता है, अगर आपके लिए फिर से ये एक्सेप्शन एक जमात और एक आदमी के ईगो और अना को सेटिस्फाई करने के लिए पाकिस्तान की आईन को पमाल किया जाता है, तो यह साफ एक पैगाम दिया जाएगा पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतों को, सारे इदारों की तरफ एक पैगाम दिया जाएगा कि आप जो बात करते हो कि सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम का मुकाबला करें, सिस्टम के अंदर रह के जमहूरियत की बात करें या जमहूरियत के लिए जदोजहद करे, वो सिस्टम के अंदर रहने का जो केस है वो थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा. और हम सोचने पे जहां आप हर चीज आप बोलने के हक भी लेंगे हमसे नेशनल असेंबली में, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को भी बोलने का हक आप उनसे छीनेंगे नेशनल असेंबली में, आप हमें डिबेट करने के अहम इश्यूज पे इजाजत नहीं देंगे. अगर आप हमारा वोट का हक और वो भी इस तरीके से छीनेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सारी जमातों की तरफ से एक सीरियस जो है रिएक्शन आएगा. इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज कर रहे हैं. हम सिंध हुकूमत के थ्रू और मियाँ सेनेटर साबिक चेयरमैन रज़ा रबानी के थ्रू रेफरेंस का जो सिलसिला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर हम अपना पॉइंट अदालत के सामने रख रहे हैं. और कल हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो हैदराबाद में जलसा होगा, इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद में दमदम मस्त कलंदर होगा. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोकल पार्टी है काफ़ी ज़ोर और शोर से अपने मेहनत जारी है और इंशाअल्लाह ताला हम
इस सूबे के अवाम की जो राय है इस पे और जमहूरियत पे, वो कल आपके सामने पूरे पाकिस्तान को ज़रूर नज़र आएगा। ये हमारा इंशाअल्लाह ताला तैयारी है हमारा महंगाई मार्च के लिए, जो 26 मार्च पे इंशाअल्लाह ताला हमारा एहतजाजी सिलसिला का जो आगाज़ होगा। और मैं यकीन रखता हूँ कि जिस तरीके से चाहे वो MRD की मूवमेंट हो, चाहे वो ARD की मूवमेंट हो, सिंध के अवाम ने भरपूर तरीके से इन मूवमेंट्स में और जमहूरियत के हमायत के लिए मेहनत किया है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि मार्च 26 का भी महंगाई मार्च में यहाँ के अवाम अपना नज़रियात के लिए, अपने हकूक़ के लिए जदोजहद करते रहेंगे। और इस माहौल में जहाँ तारीख़ी बेरोज़गारी है, तारीख़ी गुर्बत है और तारीख़ी महंगाई है, इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान के अवाम के साथ मिल के इन मसाइल से चेयरमैन साहब, मेरा सवाल ये है कि अभी आपकी मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई, एक तो उसमें कोई खास बात हुई ऑपोजिशन के इत्तेहाद से मुतालिक, और दूसरा ये कि एक बार फिर बातें हो रही है कि मरियम नवाज शरीफ पर कोई नए केस खोले जा रहे हैं, आपके ऊपर बातें हो रही हैं, और चीफ मिनिस्टर से मुराद अली शाह के खिलाफ नैब बैठने की बातें, तो ये सब क्या हो रहा है? मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ अभी हमारा बिल्कुल हमारा मीटिंग हुआ, हमारा पूरा जो ओवरऑल सिचुएशन है उस पर भी तबसरा हुआ। हमने जो ये ऑर्डिनेंस की कोशिश है और ये दांधली का कोशिश जो सेनेट इलेक्शंस में ये करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी हमने मज़ाहमत किया। अपना महंगाई मार्च की मोबिलाइजेशन के लिए जो हर डिस्ट्रिक्ट में सारे जमातें मिलकर आवाज़ उठाने और एहतजाज करने का सिलसिला जो इस महीना में होगा, उस पर हमने ज़ोर दिया। जहाँ तक नैब है, उनका कोशिश तो कब से चल रहा है और वो अपने कोशिश बिल्कुल शायद जारी भी है। हम नैब से ना आज डरे ना कल डरे हैं, और हम इनका हर हथकंडा का मुकाबला करने जानते हैं। मैं पहले भी आपके सामने बैठ के कहा, मैंने इसी रूम में शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि अगर उनमें हिम्मत है तो गिरफ्तार करे। अभी तक तो हिम्मत नहीं रहा है, देखते हैं आगे जाके कैसे होता है। और जहाँ तक मरियम शरीफ साहिबा है, हमने पहले भी इसमें मज़ाहमत किया है कि सियासी तरीक़ेकार जो हर पाकिस्तानी जानता है कि नैब अगर एक्शन में आता है तो अपोजिशन के लिए एक्शन में आता है, और अगर नैब ये सिलसिला जारी रखेगा तो हम भी अपना कोशिश में लगे हुए हैं, और मार्च 26 तक तो हम वैसे ही उनके तरफ आ रहे हैं। तो अगर वो हमें उस सिलसिले में बुलाना भी चाहते हैं, हमारा कोई मसला नहीं।